Judiciary Gold channel. Today we have with us Ms. Piyu Das, who has cleared West Bengal Judiciary Services and has secured third rank in it. Before starting the interview, ma'am, can you tell us about yourself? Okay, my name is Piyu Das and I am from Aslanpur. It's a place in West Bengal. And I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Banipur, which is a central government affiliated school. I have been into residential school. And then I have done my LLB from Government Law College, Mumbai. And then I have done my LLM in intellectual property from Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. And now currently I'm pursuing my PhD from Rajiv Gandhi School of IP Law in constitutional law and policy making. And now it's my second year. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. Now I think we can start with our interview. So the most common question usually people या student ask, मतलब I think आपसे बहुत बार पूछा भी होगा लोगों ने कि why law? Law ही क्यों? मेरे से तो बहुत लोगों ने पूछा बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ जुडिशरी पहले है और लॉ बाद में। मेरे Okay. लिए वाई जुडिशरी पहले आता है क्योंकि मैं जब क्लास 8 स्टैंडर्ड में थी तो आई हैव विजिटेड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जस्ट रैंडमली आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड अ कोर्ट रूम एंड आई saw a woman judge sitting there on the bench, and I got so fascinated by that place and the position. I don't know, like something changed in me, and I came back home and I told my father that I want to be there. Before that, I did not have any clue why I want to do law and what not. Then my brother said, if you really want to become a judge, then it starts with law, and it's not a very short procedure. It's a very long procedure. I said, yes, I'm ready to do it. So since then, I have aspired for judiciary, and then that is why law. So that Okay. is my main thing because why I did law. Okay. Oh, that's very inspiring story. Not usually लोगों का रहता है कि I want to do law and we will figure out at the end like after 5 years or after 2 3 years that okay हमें judiciary करना है या if we want to go for corporate or anything. But this is first time I'm listening from someone कि उनने law इसलिए किया because they want to do judiciary, which is very fascinating. हाँ, मेरी पूरी डिसीजन ही लॉ के जितने भी कॉलेजेस हैं मेरे, जो भी मैंने पढ़ाई की है, तो वो भी मेरे पूरे जुडिशरी के हिसाब से ही है क्योंकि मैंने जो अपना बीए बीएलएस एलएलबी है वो मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से किया है। आई स्टडीड इन अ ट्रेडिशनल लॉ कॉलेज सो दैट आई कैन बी गुड इन ट्रेडिशनल कॉलेजेस एंड आई कैन बी वेरी नियर टू कोर्ट्स. So that college is itself important to me. Because of that only I thought yes, I want to go to judiciary. I want to learn it from the best institution which has delivered most of the judges. Oh, okay, okay, ma'am. So that is very good. Like आपका पहले से clear था कि उससे accordingly, like now also lot of people don't know whether they are very sure about they want to go for judiciary or not. कि उन्हें judiciary करना भी चाहिए. And I am pretty much sure बहुत से students हैं या aspirants होंगे जिनको first year में पता ही नहीं है कि judiciary जैसी चीज भी कुछ है. कि मतलब हम जुडिशरी को भी एज अ ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि हमें 7 साल लिटिगेशन करना पड़ेगा फिर एग्जाम देना पड़ेगा तो वो प्रोसेस में ही हम क्यों जाए अभी जुडिशरी एज अ मतलब कंसेप्ट बहुत रिसेंटली डेवलप होता जा रहा है मतलब बहुत से बच्चे अब एस्पिरेंट्स आते जा रहे हैं बट उसके पहले स्टूडेंट्स को यही था कि नहीं हम 7 साल प्रैक्टिस कौन करेगा लिटिगेशन कौन करेगा जज बनने के लिए ये भी बहुत एक्चुअली अभी यूपीएससी के तरह ही पॉपुलर होता जा रहा है जुडिशरी, जितना यस मैम यूपीएससी और स्टेट पीएससी होते हैं वैसे ही ये भी उतना ही पॉपुलर होता जा हाँ रहा है. अब वो होता जा रहा है आई थिंक बहुत जल्दी जुडिशरी एस्पिरेंट्स पे भी एक स्टोरी बनने वाली होगी आई एम प्रीटी मच श्योर Okay, ma'am. Then, coming to direct question, how was your what was your preparation strategy? मतलब आपने कैसे prepare किया? Like आपने first year से ही start किया since you were so sure about judiciary from the starting itself. तो हमने उसी accordingly preparation किया था कि आपने कोई strategy थी कि नहीं final year में आके करूँगा या कुछ था आपका ऐसा कोई strategy थी? Like, to be very frank to you, I was not preparing for a judiciary at all from the very starting days because my college was in Mumbai. The first year completely took me to adjust to the city. Okay. So I will be very honest with this. So it took a lot, and also getting a good marks in Mumbai University was not easy. So I first thought, let's do the LLB first, then only I can proceed further.
So I concentrated on my college and its education. I did internship, but I made sure I do internship which are related to litigation and I can visit courts. That was there in the back of my mind. I did not went for the brand names of the various law firms. I went for mostly lawyers who can give me internship and where I can actually approach the court and see how the court proceeding works. So that I have seen, and that is what my planning was for my whole 5 year. Then after 5 year book, because I was my in my Mumbai University, तो इसलिए मुझे अपना जो वो ग्रेजुएशन के बाद आपको मिलता है ना लॉयर्स का जो लाइसेंस जिसको सर्टिफिकेट, हाँ, बोलते हैं बार लाइसेंस। काउंसिल ऑफ इंडिया से, हाँ, तो उसके लिए मुझे स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई करना था बिकॉज आई वाज फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो वो ओके, टाइम मुझे 2 साल लगा, सो आई थॉट ओके, कि आई विल नॉट वेस्ट दैट ईयर and I will use it for my LLM. So I did my LLM from IIT Kharagpur, Rajiv Gandhi School of IP Law. एंड ओके, इसका मुझे पूरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैं इसमें पढ़ पाऊँ क्योंकि ये कैंपस लाइफ होगा एंड इट विल बी इजी फॉर मी टू स्टडी, इसीलिए मैंने लिया था। तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे शुरू किया। पहले तो मैंने ट्रेडिशनल लॉ के सब्जेक्ट से शुरू किया, इवन मैंने अपना सब्जेक्ट भी इसी हिसाब से चुना आईपी लॉ, क्योंकि ताकि मुझे जुडिशियरी के सब्जेक्ट से थोड़ा ब्रेक मिल सके व्हेन आई एम डूइंग माय एलएलएम। तो इट्स अ ओके, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लॉ यस मैम, सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे किया। तो वंस आई गॉट माय बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, स्टेट रजिस्ट्रेशन, देन आई अप्लाइड एंड या इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। So from ओके, LLM, you can count me, yes, on judicial okay. services. So you started your preparation since like when you started doing your LLM after. Yes. Okay. And ma'am, why IP only? Like this is a very different, like judiciary and IP doesn't go hand in hand, क्योंकि किसी भी जुडिशरी के पेपर्स में आईपी नहीं आता। लाइक यू सेड आपने एक रीजन के कारण चूज किया था। कैन यू जस्ट लाइक एलोबरेट कि मतलब क्यों पर्टिकुलरली आईपी ही चूज किया था आपने? आईपी इसलिए चूज किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सब्जेक्ट वाज आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसमें क्या हुआ, मुझे एक्चुअली देयर वाज नो वन टू गाइड मी। आई थॉट कि जुडिशरी में बहुत सारा ट्रेडिशनल लॉ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आई विल बी बोर्ड, सो क्यों ना कुछ ऐसा डिफरेंट लिया जाए जिसको पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट हो। बट आफ्टर 6 months of taking IP, I realized that it's not my cup of tea. So, but I did not stop it there. I continued my LLM in IP and I completed it in the second year. And then I decided if I go for my PhD, which I did, and this is my second year in PhD also. Okay. So then when I went to PhD, I talked to my guide and I told her that I'm not at all good in IP, even if I done my LLM. And then I asked, can I do it in constitutional law? So she said yes, and then I proceeded towards constitutional law. So taking IP was like something different from judiciary case subjects, but actually turned out it's something a different experience for me. Yes, yes, वही judiciary and IP doesn't go hand in hand. मतलब it's a totally different concept, different scenario. Everything is different in IP. But I had to contribute a lot to both LLM and both judiciary as well. Okay. Ma'am, coming to that point only, what do you think? Like, is LLM is very important for the judiciary aspirant? Like, lot of our aspirants ask us, like, is LLM a very important thing if you're pursuing judiciary? Okay. So here, I would say one thing very important. If you are very much determined about your judiciary, yes, एक तो जुडिशियरी मतलब लॉ के लिए एक हो जाता है कि 5 साल ऑलरेडी आप चला जाता है आपके ग्रेजुएशन में ही, तो आपको थोड़ा लगने लगता है कि व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग, तो एक वो चीज भी होती है। तो जैसे कि मान लो अगर आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो सिर्फ आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन करो आफ्टर योर लॉ एट सिटिंग एट होम, तो फिर वो भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि नहीं, एक साइड बाय साइड कुछ चलता रहे, देयर शुड बी समथिंग एज अ, जिसको हम बोलते हैं एज अ सेकंड ऑप्शन या फिर एज अ बैकअप प्लान। अगर आप एलएलएम कर लोगे या फिर आप आजकल के दिन में आप एलएलएम के बाद आई मीन नेट दे के आप वो भी कर सकते हो, कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हो और आप पीएचडी भी कर सकते हो। ये एक हो जाता है आपका हायर एजुकेशन का पूरा रोड आप बना लेते हो अपने लिए। तो एक हो जाता है कि आप पढ़ने में ही रखते हो अपने आप को। बट आई विल सजेस्ट कि एलएलएम के सब्जेक्ट वैसे ही लो जो आपकी जुडिशियरी में भी काम आए। द मिस्टेक आई हैव मेड, आई वोंट सजेस्ट इट टू पीपल, बट आप वही लो सब्जेक्ट्स ताकि आप जुडिशियरी में काम आए और एक सब्जेक्ट को इतना हैंड कर पाओ कि वो उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, एंड दैट रियली हेल्प्स यू बिकॉज
मेंस के एग्जाम में जाके सारे सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवरीवन प्लेज एन इक्वल रोल। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट पे आपका होल्ड बन जाता है, आप किसी एक सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो बिकॉज यू हैव एलएलएम इन इट, मतलब आप कर रहे हो एलएलएम इस सब्जेक्ट पे, तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको चाहिए साइड में कुछ, आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना है, यू मस्ट गो फॉर एलएलएम। Okay. And ma'am, coming to the subject, what was your favorite subject when it comes to judiciary? Like you really like studying that subject. I love constitution, and Oh, the problem with West Bengal judiciary is it is an optional subject in means, and it was okay. not suggested by any of the people. The people I have talked also, like I have not many people whom I know that who knows about judiciary and all. But whosoever I have asked, even my friends, they said it's very vast. When you have limitation as an option and constitution as an option, of course anybody will suggest you to take limitation, which is like not even one fourth of, like not even one fourth, one third of, like I don't know, like it's very small than constitution. Constitution, So yes, I ma'am. said no, I love that subject, I will take that particular subject. And and that will, I think, help me to do it well, like I'll be confident in that particular subject. So even if it was optional, it was so lengthy, I could have reduced on my study time, because limitation would have been much more easier for Yes, me. ma'am. But I took a constitution because it was my favorite subject, and I'm really very happy that constitution got me this rank, and I'm really happy that with constitution I got this rank, because otherwise if I would have to give a second attempt, everybody would have said because of your constitution, that was a lengthy paper, that was a lengthy subject, you had to take you could have taken limitation, that was better. So that is why I say whatever you like, whatever you love, take that, your subject will justify it. Yeah, again, that is a lesson, I think. Means if you're sure about some subject, even it's very lengthy, it doesn't matter. But if you're sure that you can give your 100% in it, you should go for it. Like this is a very good lesson every aspirant should know, because usually when it comes to subjects, they always choose कि नहीं, जो छोटा वाला होगा वो ले लेते हैं, जो easy होता है वो ले लेते हैं. But they don't think कि कभी कभार छोटी subjects भी होते हैं which becomes very tricky at times. बिकॉज दे डोंट हैव मच डाटा, तो उसी में घूम सकते हैं आप, कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो है उसमें घूम भी सकता है. तो या दैट इज अ वेरी गुड लेसन कि हाँ वो यहाँ सब्जेक्ट पे लो. मैं एक चीज और भी बताना यस चाहती मैम. हूँ, जो बहुत आप ना, आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे जब हमारे केस में आप अगर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम के दिन देयर वाज काउंटेड लाइक 8 स्टूडेंट्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द मेंस। इतने बच्चे मेंस देने जाते हैं, उसमें से 8 स्टूडेंट थे, बिकॉज इट वाज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इट वाज सो रेयर बिकॉज द पीपल हु हैड टेकन आइदर दे आर डूइंग मास्टर्स और पीएचडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसीलिए उन्होंने लिया था। तो आप अगर देखते हो, और वहीं पे अगर आप लिमिटेशन में देखा मैंने, तो इट वाज लाइक इट लुक लाइक अ मेन पेपर, लाइक इट इज लाइक अ कंपलसरी पेपर। इतने सारे क्राउड थे एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि व्हाई डिड नॉट यू टेक लिमिटेशन एंड व्हाट डिड यू टेक इन प्लेस ऑफ लिमिटेशन। बट उसमें आपको एक चीज क्या लगता है कि पता है, आप अपना कंपटीशन भी देखो, इसमें आप सिर्फ 10 लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो, और उसमें आपको पता है कि अगर ये सब्जेक्ट टफ है तो कंपटीशन भी कम होगा। तो और ऊपर से लिमिटेशन में आप कंपटीशन भी देखो अपना, ये बहुत मैटर करता है। सो गेटिंग 60 इन कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी गुड, बट गेटिंग 60 इन लिमिटेशन माइट नॉट बी गुड। नॉट सो बी. दैट ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी यू प्लान फॉर योरसेल्फ। तो इसीलिए इस हिसाब से आपको हमेशा कोई भी जुडिशरी के में अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस है, तो आपको हमेशा ये सब कैलकुलेट करके सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। Okay. Ma'am, coming to the subject points only again, what are the different subjects West Bengal judiciary has? Like, not many aspirants are aware about it. So, can you tell me, like, what is the pattern of West Bengal judiciary? अच्छा, मतलब मैं शुरू से ही बता देती हूँ। जैसे कि प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स में आपके पास 170 जो 140, आई थिंक 130, सॉरी 130 जो होता है वो होता है लॉ से आता है। ओके, बाकी 70 में 40 इंग्लिश का आता है, और 30 जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को मिला के आता है। ठीक है, बाकी जो 130 है उसमें आपका सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो भी है आपके सीपीसी, और ऑल्सो योर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉज में से ये दोनों आते हैं। ठीक है, आपके लिमिटेशन भी आता है। बस ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपका जो है, आपका वो 130 मार्क्स जो बनता है। तो उसमें भी अगर आप जब फॉर्म डाउनलोड करते हो या फिर फॉर्म भरते हो, दे गिव स्पेसिफिकली कि कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट के लिए अलॉट होते हैं। जैसे कि सीपीसी 20 मार्क्स,
कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क्स, आईपीसी और सीआरपीसी मिला के 20 मार्क्स होता है। तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो सिर्फ 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देंगे एंड द सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट, तो आपको वो भी याद रखना है। ये प्रीलिम्स की बात हो गई। आते हैं अब मेंस पे। मेंस पे आपको जो है आपको ऑलमोस्ट 1100 टोटल में 1100 की एग्जाम देनी पड़ती है, जिसमें से कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, जिसमें से कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास बहुत लंबी लिस्ट मिलती है, बट द मोस्ट पॉपुलर वन आर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, पार्टनरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पांच, बाकी भी बहुत सारे हैं जैसे कंपनी लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस भी है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ये भी है, बट मैं पॉपुलर पांच की बात करी। ये ऑप्शनल हो गया। अगर आप मेन की जो कंपलसरी सब्जेक्ट है अगर आप वो लेते हो तो उसमें आपको शुरू से होता है, सबसे पहले इंग्लिश का एक फुल पेपर होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज, जैसे कि बंगाली, हिंदी और आई थिंक नेपाली या कुछ है, बिकॉज ऑफ नॉट बंगाल, इस वजह से है। तो बट बंगाली एंड हिंदी ही मोस्टली होता है। आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, एक लैंग्वेज पेपर हो गया। उसके बाद आपका आता है देयर इज अ जनरल नॉलेज एंड अ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पेपर, जो मुझे मतलब जो 100 मार्क्स का आता है, 50-50 मार्क्स। बट ये एमसीक्यू नहीं होता है, ये आपको लिखना पड़ता है। तो आपको प्रॉपरली डिफरेंट टाइप ऑफ जीके एंड मतलब करंट अफेयर्स है, आपको आंसर लिखना पड़ता है। डोंट गेट ऑप्शंस टू click on. Okay, so that is there. Then starting with the law subject, there is CPC, which is compulsory, that is 100 marks. Then IPC and CRPC, they are 50-50 marks, but consist of 100 marks. Both the subjects are very lengthy. Coming to third is evidence. Evidence is also 100 marks. And then there is contract and tort, that is also 100 marks. And they are like 50-50 in that 100 marks. And there is TP Act, Transfer of Property Act, ये भी 100 marks का। ये हो गए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट। मैं एक चीज प्रीलिम्स में बताना भूल गई कि टॉट और कॉन्ट्रैक्ट प्रीलिम्स में भी आते हैं, बट दोनों मिला के 20 मार्क्स के ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंस और इंटरव्यू के 100 मार्क्स। बस यही है पूरा सेटअप। Ma'am, coming to the language part, how important you think is language? Because West Bengal में, since you said कि मेंस में बंगाली और हिंदी दोनों आती है, बट इफ समवन इज जो नॉन जिसको बंगाली नहीं आती है, इवन इफ ही और शी क्लियर्स द पेपर एंड वो इंटरव्यू में जाता है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में तो वो देखेंगे कि क्योंकि सिंस लोअर लेवल पे है तो लोअर लेवल पे ऑब्वियसली लैंग्वेज इज अ बैरियर। तो आप मतलब व्हाट यू थिंक, मतलब आपने दिया है यू नो कि लैंग्वेज एज अ बैरियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है व्हेन यू गो टू इंटरव्यू? हाँ, एक ऐसा जो है, आप हिंदी देके, ये एक चीज वेस्ट बंगाल जुडिशरी में बहुत अच्छा है कि आपके पास हिंदी एज एन ऑप्शन है। मतलब आप मेंस में उससे मार्क्स निकाल लो, अगर आप नॉन बंगाली कोई भी स्टेट से हो तो आपके लिए ये चीज बहुत अच्छा है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू ना, तो सबसे पहला चीज होता है, दे सी दैट वेदर यू हैव गिवन अ पेपर इन बंगाली और नॉट। तो इफ यू हैव नॉट गिवन अ पेपर इन बंगाली, ठीक है, तो वो दे ट्राई टू टॉक टू यू ऑल्सो इन बंगाली। ओके, सो दे सी वेदर यू नो द लैंग्वेज एट ऑल और नॉट। Okay, there are people in our batch itself who is not from the state of West Bengal. So what is there, they also give you a newspaper, Bengali newspaper. They just see whether you can read. Okay, they give you a pen and paper, it's kept there, they will ask you to write something. So they just see your ability, basic ability to read, write and speak Bengali. They don't go into too much of nitty gritties. So that is why I say that कि West Bengal Judicial Services में अगर आपका मेंस का मार्क्स बहुत अच्छा है, तो इट्स वेरी रेयर दैट यू गेट बिकॉज ऑफ दिस आपको बैरियर होगा इंटरव्यू में। बट ये चीजें आपके जज होंगे एंड विच इज क्वाइट एविडेंट कि हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लोअर लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हाँ, आपको लिखने भी बोलते हैं, वो लोग आपसे बात भी करते हैं and they try so that you can read it or not. So they give you a Bengali newspaper where there is a proper Bengali written complete newspaper. So that is there. So that much barrier is there. And they ask you how you are going to adjust because you are from some other state, how you're going to understand the problem of this particular state, because if you are not domiciled here, of course you are going to sit in the lower judiciary, so the question might change a little bit, but other than that it's always the same. Ma'am, what was your interview strategy? Like, how good, मतलब, how your interview went? Interview went very different. Like interview के बाद I was not at all sure whether I will be getting good thing or not. मुझे नहीं पता था.
बट एक चीज होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कुछ बोलना है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो आप मेंस की रिजल्ट, आप मेंस का क्वेश्चन आंसर भी लिख रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, हमेशा सोचो आप किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हो। तो उस पोजीशन पे जब कोई इंसान बैठता है तो वो कैसे उस जगह पे बैठ के बात करेगा, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू इन द इंटरव्यू। So that much level of confidence you must have. So ऐसा नहीं है कि they are gonna for me that was there, they asked me very different questions, no question from the law because एक चीज ये था कि of course उन्होंने आपको check कर लिया है law पे because they have taken a mains examination. So interview में it was completely personality based. So they asked me why I am planning to do judiciary and not my dad's business. So that was something of a different, why you are so desperate or why you are so obsessed with that particular occupation you want to take. You just can't answer that that is a security of government job. So that is like, you have to justify your place. So that is the kind of question answer you get. And of course they ask you like, for example, the way they asked me that, you will have a transferable job and how you're going to manage, because different climate, different people, even in Bengal also, different district people speak in a little bit of different Bengali. Their tones are a bit different, the way we have it in Hindi also. Yes, तो ma'am. दैट इज द थिंग, उनके साथ भी ये चीज हो जाता है, तो वो लोग पूछते हैं, तो मुझसे भी यही चीज पूछा। तो आई सेड सर मैं तो बचपन से हॉस्टल में रही हूँ, तो ना चेंज और ना ट्रांसफर इन सब की, मतलब कॉलेज भी बॉम्बे में था, तो ये सब चीजें हो जाती है। जैसे आप ऐसे करके अपनी जस्टिफाई करो, क्योंकि दे विल आस्क यू बिकॉज दिस जॉब मतलब brings a lot of responsibilities on you, so how you are going to handle it without your family sometime, so वो सब चीजें थोड़ा पूछते हैं। So they totally ask you in the position that you will be a future judge, so how you are going to handle your position, उस हिसाब से देते हैं, और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना बेसिकली योर पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप जितने चाहिए। कॉन्फिडेंट होगे यस उतने यस। अच्छे से आपके आंसर ओवरऑल हो हाँ, जाएंगे। दे डोंट आस्क यू ऑन लॉ, मतलब कभी मुझसे जैसे एक चीज पूछा था सीआरपीसी से कि ट्रायल कब शुरू होता है, मतलब एक दो छोटा छोटा जो आपको आएगा ही, मतलब वो आपको पता है, वो इट्स लाइक जस्ट टू एंड द कॉन्वर्सेशन। बट बाकी वो लोग जो पूछते हैं वो आपके दे चेक योर थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो, आपको कुछ सिचुएशन भी दे सकते हैं, देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर इस टाइम जज पे होते, मान लीजिए कोई भी एक केस लॉ दे दिया, मतलब केस लॉ नहीं, उन्होंने ये केस बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि मान लो किसी एक लड़के ने लड़की को स्लैप कर दिया, उसके बाद ही इज आस्किंग, ही इज अग्रीइंग टू इट, यस आई हैव डन इट, तो हाउ यू आर गोना पनिश हिम, यू नो वो सब वो लोग पूछते हैं, गिविंग या सिचुएशन, तो ताकि वो आप अपना जस्टिफाई करो द प्लेस यू आर गोना सिट ऑन, तो वो चीज देखते हैं। मैम, आप कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं एक वो वाले क्वेश्चन के लिए कि व्हाई, मतलब व्हाई यू वांट टू बी जज, क्योंकि दैट इज, आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन जो हर जुडिशरी में पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज या व्हाई जुडिशरी ओनली। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो जॉब छोड़कर आते हैं, मतलब अच्छे अच्छे पैकेजेस, मतलब बहुत से मैंने देखा है कि जो पैकेजेस छोड़कर आए हैं टू परस्यू जुडिशरी। तो वो एक, आई थिंक दैट इज सम क्वेश्चन जो हर जगह पूछा ही जाएगा, मतलब कोई सी भी जुडिशरी हो, कोई सा भी स्टेट हो, वो पूछा जाएगा ये चीज कि वाई, मतलब see, since in your case you were very clear, so it was like it became little easy for you to justify your answer. But do you have any like straight, मतलब कुछ guides की, मतलब ये बोल सकते हैं या मतलब। हाँ, क्योंकि मेरे केस में भी जब उन्होंने पूछा था, उन्होंने मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे ये घुमा के पूछा था कि व्हाई यू वांट टू डू जुडिशरी विदाउट डूइंग योर डैड्स बिजनेस, तो आई हैड टू से दैट आई हैव अ फैमिली बिजनेस, मैं उस पर भी काम कर सकती हूँ। तो बट व्हेन आई सेड दैट कि इट्स लाइक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोसाइटी से बहुत कनेक्टेड रहते हो, तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड वेयर यू कैन सर्व द सोसाइटी, so it is one of the very prestigious position you have to serve the society directly, तो वो आप बोल सकते हो। तो दैट इज लाइक दैट वाज माय आंसर, बिकॉज ऑफ कोर्स being a place like I am from a place in West Bengal where it is like this is not a very popular, like it's not a city or town, so I said I have seen people going through a lot of pain and all, and that's why I thought there are things which are from here you need to talk about people, you need to think about people, and that is the thing you can do being on the bench, so that is the thing is very important.
I feel being a judge. So that is what motivated me to be a judge. Yes, it was a childhood dream, of course, but the way I grew up and I saw from that day, particularly, I started seeing my surroundings, why we actually need this kind of institution. So it took me a lot to understand. And then I answered it in this manner only that, it will make me connect to the people and I'll understand how I'm going to serve the people. It is not at all a security. It is not at all for the purpose of security. Of course, it has a very good job security and also not at all for the salary. And of course, it's only for the connection you want to build with the people and being on such a good institution. People always have faith on the court and the judiciary. So that is the thing where you are gonna have them. That Okay. is the thing. Ma'am, since it was your childhood dream, like you said, it was your childhood dream, were there times when you were like, नहीं हो पाएगा या नहीं करना है, like बीच में कोई फैंसी चीजें आ गई कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज आल्सो लाइक इट हैज गुड पे, एवरीथिंग इज गुड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो, सो देयर वर टाइम्स जब आपको लगता था नहीं नहीं छोड़ो जुडिशरी नहीं करते हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, मतलब व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग कि नहीं ये ही करना है, ये इसी चीज को फॉलो करना है? हाँ, ये चीज क्यों होता है मैं ये चीज बताती हूँ। जैसे मैं ऐसी सिटी में रह के अपना एलएलबी किया है जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक ऑन द टॉप and like Mumbai में सब after your LLB you are sure you're going to a law firm or any corporate firm or at least any company तो for sure. So Yes. वो हो ही जाता है like and GLC से निकल के या तो आप ऊपर से अगर आप एलएलएम भी करते हो तो भी आप फॉरेन में जाते हो, आप अब्रॉड बेस्ड एलएलएम करते हो। तो ये चीज था बट मैंने जब भी अपना इंटर्नशिप को डिसाइड किया, मैंने हमेशा ऐसे इंटर्नशिप डिसाइड किए, मैंने पहले भी बताया कि मैंने हमेशा कोड बेस्ड इंटर्नशिप किए हैं। तो मैं हमेशा व्हेन यू सी अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कोर्ट तो मैं हमेशा पॉइंट रखती थी कि व्हाट हाउ अ जज इज गोना स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। ओके, तो जब तुम खुद इंटर्न होके जाते हो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कोर्ट, so that kept me motivated कि yes I want a place here not anywhere else. So office was not my place at all. I could understand I was there to only to go to the court. People were like नहीं नहीं बॉम्बे में जैसे बारिश बहुत होती है तो मॉनसून में nobody was ready to go to court, but I was always ready to go to court. So I was not a office person. मुझे समझ आ चुका था in my 4th to 5th year कि मैं cubicle में नहीं बैठ सकती. So that was one thing. And second thing is मुझे बहुतों ने सजेस्ट भी किया अगर तुमने जुडिशरी करना चाहते हो तो तुम क्यों ना कॉर्पोरेट जॉब्स के साथ भी तो हो सकता है, यू कैन बट आई सेड कि इफ आई मूव अवे फ्रॉम स्टडीज तो बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए, इसीलिए मुंबई छोड़ के I came back to IIT Kharagpur, like which is like a very big transform or like you can say a transition phase in my life. That from that city life I have came to a place where it's a complete campus life. So I actually came from auto and taxi to directly to cycle. So it was a very big change in my life. But I decided because I wanted to have it because so that I can do my preparation. And I understood it's a campus life. So of course there will be a schedule and I can completely give my time to my studies. So इसलिए तो आपको ना हमेशा आप कुछ भी हो आपको आपकी चीजें रियलाइज करती रहनी चाहिए कि नो आई एम मेंट फॉर दिस, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। आप अपनी जो है आपकी your mind will give you intuitions to see कि whether this is for you or this is not for you, तो आपको उसको कैच करना है। इफ यू डोंट, हाँ होता है बहुतों के साथ चेंज होता है कि लगता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर इट, जैसे मेरे साथ भी हुआ आईपी लेने के 6 महीने में मुझे लग गया कि यस आई एम नॉट मेंट फॉर इट, एंड देन व्हेन आई टुक constitution as my PhD subject, then also I understood yes this is my area, I want to be happy within this place. तो इसी धीरे धीरे एक एक इंट्यूशन से मैंने अपना पूरा मोटो जो है मतलब हमेशा से मैंने इस गोल को टारगेट करके रखा। एंड एज माय फैमिली मेंबर्स आल्सो ईच वन ऑफ देम सेज इट्स नॉट अ वन डे ड्रीम, इट्स अ 12 years ड्रीम। सो शी हैज जस्ट क्रॉस दैट टू हियर। सो आपको आपके ड्रीम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, नहीं तो इट कैन नॉट हैपन। एंड ऑफ कोर्स मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे थे कॉर्पोरेट जॉब्स में, दे वर अर्निंग द टाइम आई वाज टेकिंग मनी फ्रॉम द फैमिली। ये भी बहुत जगह बार बार होता है कि आप अपने कर लिया ग्रेजुएशन तब भी आप अपनी फैमिली से पैसे ले रहे हो और काम आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है ये चीज। बट मेरे सारे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट जॉब्स में थे बट फिर भी आई सेड नो, it's something different. If you have to do you have to sacrifice something out of yourself. So I did that. So इसीलिए ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, but I did not want it.
That is all. If you did not wanted to, just go for what you want to do. That's आई थिंक पीयर प्रेशर जो आप बोल रहे हो कि फ्रेंड्स कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे एंड हम अर्न नहीं कर रहे, वो आई थिंक वो वाला जो होता है ना सबसे, वही वाला फेस होता है जब सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होते हो आप कि यार मैं इतने साल मतलब, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली 23-24 उस एज गैप में है। तो उस एज में आगे एक तो सोसाइटी ने एक नोशन बना दी कि इतने तक तो आपको अर्न करना चालू कर देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रहता है कि यार सब कमा रहे हैं, हम ही नहीं कमा रहे, हमें हाँ, वो भी पेरेंट्स हो से जाता है। जैसे पेरेंट्स से मैं पैसे दो। सिर्फ इस चीज का प्रेशर तो सबसे ज्यादा है सोसाइटी के छोड़ के भी, ये चीज का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि साइड में मान लो कोई इंजीनियर है तो उनको ऑलरेडी प्लेसमेंट लग चुका होगा। आप ही के बैचमेट थे शायद 12 में, उनका हो गया होगा, कई जगह जॉब लग गई होगी, बट आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। तो यू हैव टू नॉट ओनली जस्टिफाई इट टू योर सेल्फ, मतलब आपको बहुत लगता है, ऐसे ही लगता है कि आपके फ्रेंड आपको कुछ खरीद के भी दे तो भी आपको लगता है दे आर बाइंग इट फ्रॉम देयर ओन मनी, but you are still doing it from your parents money. The thing is, what is I'm saying, it's not I'm saying, it's what I have been through. So it's like it is very tough to hold on to yourself at that point of time, or stick to your goal. आप उल्टा घर से पैसे लेते हो to buy your books also, मतलब आपके पास, मतलब you still need your pocket money क्योंकि आप पढ़ रहे हो कम्प्लीटली। सो इसीलिए बहुत ज्यादा टफ होता है इस टाइम का जो पीरियड होता है, आपके फैमिली, आपका सोसाइटी, you know and there are like comments also, like how long you're gonna study, think about something for the future. And I will mention one more thing: when you are a girl, that becomes much more tough for you, of Yes, course. So after ये a तो हो ही certain जाता है, ये age. तो it's like an addition we have in the society. So सब कुछ मिला के, yeah, it was a very tough journey for me. ओके, सिंस मैम यू सेड कि आपने इंटर्नशिप्स भी उस अराउंड में की थी जिसमें आपको कोर्ट से इंटरेक्शन आपका ज्यादा रहे, सो हाउ मच यू थिंक दैट इंटर्नशिप्स हैज कंट्रीब्यूटेड इन योर ड्रीम टू बिकेम अ जज, लाइक कितना वो हेल्पफुल थी वो इंटर्नशिप? वन फैक्टर वाज दैट इट केप्ट यू मोटिवेटिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मच, लाइक कितना इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, की इंटर्नशिप्स कोर्ट के अराउंड ही करनी चाहिए या दे कैन बी गो फॉर एनीथिंग एल्स आल्सो लाइक कॉर्पोरेट और आल्सो? हाँ, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अपने कॉलेज में जब थे हम लोग, जो लोगों को जुडिशरी का एग्जाम देना होता था, मोस्टली जजेस के साथ इंटर्नशिप करते थे, एंड दैट वाज अलाउड लाइक इन मुंबई हाई कोर्ट ऑल्सो। तो हाई कोर्ट जजेस के साथ इंटर्नशिप करते, तो आपको हाई कोर्ट जजेस के साथ इंटर्नशिप करने में एक चीज हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा कोर्ट प्रोसीजर देखने को मिलता है। तो विच इज लाइक, जो बोलते हैं लॉ में, लॉ इज लाइक अनदर, लाइक एमबीबीएस में जैसे होता है, आप जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं देखते हो ना, तो आप रियलाइज नहीं करते हो सिटिंग एट रूम एंड डूइंग लॉ। इसीलिए बोलते हैं लाइक वर्किंग ऑन लैपटॉप इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड वर्किंग इन कोर्ट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। तब कोर्ट में बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। सबसे बड़ी चीज जो हाउ प्रोसीडिंग हैपेंस, हाउ द लॉयर्स आर्ग्यू, वो सिर्फ आपको कोर्ट में मिलता है देखने को। What the judges are gonna comment on a particular argument. So that also you are only can be seeing in a court. That's how you build yourself. और एक चीज जो होता है, जो आप बुक में पढ़ते हो, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, जो आप बुक में पढ़ते हो, क्योंकि सीपीसी और सीआरपीसी तो प्रोसीजरल लॉ है, तो उसको आप सिर्फ पढ़ते हो बुक में, बट उसका एक्चुअल लाइक एप्लीकेशन जो है वो आप कोर्ट में करते हो। जब आप फाइलिंग करते हो तब आप लिटरली वो सेक्शन याद करके लिखते हो कि यस, अंडर दिस आई एम फाइलिंग दैट। तो ये जो होता है ना, not only high court, I'm talking about city civil court also magistrate courts, आपको सारे कोर्ट के तो ये होता है कि आप इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपके दिमाग में शार्पली बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज, और एक चीज होता है कि जैसे कि मतलब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है, नॉट ओनली थ्योरेटिकल। तो वही चीजें पढ़ के आपको ये पेपर भी लिखनी है जुडिशरी का। सो दैट इज हाउ द कोर्ट environment, also the environment, the court environment, you have to serve to that particular environment, you are planning to serve to that particular environment। अगर आपको उसी environment में रहने का मौका मिल रहा है when you are already in your preparation phase, तो that's a very good thing। जैसे बहुत लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सारे सब्जेक्ट, जो जो प्रोसीजरल लॉ की वजह से जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये चीज जो है ये कोर्ट से आपको मिलता है। Okay. And ma'am, what was your biggest challenge while preparing for judiciary? कि आपको लगता है this was my biggest challenge? uh, इसमें मैं एक चीज थोड़ी डिटेल में बताती हूँ आपको। जैसे कि देखो, मेंस की बात है तो
जुडिशरी में ये चीज मुझे रियलाइज करने में भी बहुत टाइम लगा, दैट प्रीलिम्स होल्ड्स अ वेरी लेस वैल्यू। ये चीज मैं टेक्निकली में नहीं बोल रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रीलिम्स का काम तब तक होता है जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस पे बैठ गए, उसके बाद आपको प्रीलिम्स की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। तो आपका एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखनी है, हियर इट इज ऑल अबाउट मार्क्स। आपको मेंस में अगर आपका ज्यादा मार्क्स आ गया, चाहे आपका इंटरव्यू थोड़ा सा भी खराब गया हो, इट विल कवर अप विथ योर मेंस। सो एट द अल्टीमेट थिंग व्हाट आई वांट टू से इज एवरीथिंग रोम्स अराउंड मेंस। तो ये चीज मुझे समझने में बहुत देर से समझ आई मुझे कि मेंस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो मेंस का जो अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, द मोस्ट ऑफ द जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स है दे माइट कनेक्ट टू इट, कि जो भी सबसे ज्यादा चैलेंजेस है ना वो मेंस के फेज में आता है। एंड तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, आपके रिजल्ट भी आ चुके होते हैं, एंड यू आर श्योर दैट यस यू एम गोना सिट फॉर द मेंस, और आपके पास 1 या 1.5 महीना बचा है। तो उसके के बाद आपका मेंस होता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है फॉर द मेंस। वो 2 महीने कैसे इस 11 सब्जेक्ट को, हाउ यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। 11 सब्जेक्ट, इट्स नॉट इजी इन योर लॉ schools you have taken that to read like for 5 years, उसको आपको 1.5 महीने में खत्म करना है, इट्स नॉट इजी। तो उसमें आपको सबसे बड़ा ज्यादा चैलेंजेस फील होता है, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली इज व्हाट आई विल रीड एंड व्हाट आई विल राइट। ये बहुत बड़ी चीज है। हम पढ़ने में 5 पेजेस पढ़ लेते हैं, बट हम 5 पेजेस लिख नहीं सकते जाके एग्जाम के टाइम में। तो वो बहुत बड़ी चीज है कि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ एक्सपीरियंस से कि आपको अगर लगता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू गोना रीड एंड व्हाट यू गोना राइट, स्टार्ट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, लाइक क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अगर आप अपने जगह एक एग्जामिनर की जगह अपने आप को रख के देखो और देखो कि अगर मैं ये पॉइंट लिखती तो मेरा आंसर जो है एक इट वुड हैव लुकन लाइक अ क्वालिटी आंसर, नॉट लाइक जस्ट रैंडम आंसर। तो आप उस हिसाब से देखो। तो दैट इज विच आई वॉन्ट टू से इज सिंपली योर हैंडमेड नोट्स। आपके खुद के नोट्स होना चाहिए, ताकि तो ही आप डिफरेंट हो सकते हो ना लोगों दूसरों से। और एक चीज जो है जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिख सकते। जैसे मान लो आपको कोई भी सेक्शन है, आपने सेक्शन लिख दिया, सेक्शन के अंदर क्या है वो लिख दिया, कोई इलास्ट्रेशन दे दी, केस लॉ लिख दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको देखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है इलास्ट्रेट, कमेंट, एक्सप्लेन। ये 3-4 चीजें वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका मतलब ये है कि आपको अपना एनालिसिस भी देना है, आपको अपनी समझ भी उनको बताना है कि हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ द इलास्ट्रेशन रिलेट्स टू द सेक्शन, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। तो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि बाकी इलास्ट्रेशन सेक्शन और ये तो सबने पढ़ी है, सब लिखेंगे, तो हाउ योर आंसर इज गोना बी डिफरेंट। तो वो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड एक जो है, आपको ये समझना है जो भी मेंस का एग्जाम होगा, भले ही आपको 1.5 महीने का टाइम भी मिल रहा हो पढ़ने के लिए, बट बी श्योर दैट कि वो जो होगा वो 1 हफ्ते में होगा। तो विच मीन्स कि आपका एक दिन में 2-2 पेपर होंगे आपके पास। तो वो आपको दिमाग में रख के चलना है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिगरस प्रोसेस। सबसे बड़ी चीज है मेंटल प्रिपरेशन, कि यस आई एम रेडी फॉर इट। तो वो चीज बहुत ज्यादा होते हैं। when you are studying you can study, but when you have to write in the exam it's exhausting। आपको ये भी काउंट करना है कि मुझे जाने आने में भी टाइम लगेगा, उसमें भी मुझे थकान होगी। you have to count everything, each and every factor is important। तो ये सारे challenges में आते हैं। तो आप जो है, आपको पहले से प्रिपरेशन करना है कि आप इस चीज का क्या करोगे कि बुलेट पॉइंट्स बना लो। एटलीस्ट 15 days बिफोर द एग्जाम यू प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि ट्रस्ट मी, if you have 2 exams in a day and the next day also you have 2 exams, once you back at home at night you will not have more than 3 hours to study, and that 3 hours is also not complete. Like in that you have to eat also, you have to sleep also, because you have to next day you have to write up 2 more papers। so that is what I'm saying, prepare each and every like for every subject prepare a bullet note। तो बुलेट नोट्स में क्या होता है, जो मिनिमम 20 से 30 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप एक बार दैट इज, उसको कहते हैं आई रिविजन। आप एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, आप देख लिए ठीक है ये मुझे कल लिखना है, जस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम दिस मच इज एनफ। आप अपने पॉइंट्स लिख लो, आप अपने हेडलाइंस देख लो, और उसके अंदर क्या लिखना है वो ऑलरेडी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपका ये होता है 15 days बिफोर द एग्जाम के रिविजन स्ट्रेटेजी। तो ये होना चाहिए नॉर्मली। और एक चीज जो है आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग, अगर आपके पास टाइम है
आप प्लीज क्वेश्चन आंसर राइटिंग सोचो, क्योंकि हम सोचते बहुत कुछ है कि हम इतना लिख लेंगे उतना लिख लेंगे, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू आर गोना राइट इट, आप एक क्वेश्चन में आधे घंटे से ज्यादा लगा देते हो, एंड विच इज नॉट वायबल फॉर द एग्जाम यू आर गिविंग। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या है, आप बहुत अच्छे से लिखो एंड उसको क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आपके पास एक सोल्यूशन है। आप क्या करो कि क्वेश्चन आंसर जो भी है प्रीवियस ईयर है, जो भी जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, आप उसको निकालो। आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता तो मैं क्या क्या पॉइंट लिखती, जस्ट राइट दोस पॉइंट्स। तो क्या होगा, आपको पूरा पेपर नहीं लिखना है, आप बस राइट, यू आर राइटिंग दोस पॉइंट्स, और आपके दिमाग में है आप क्या क्या लिखने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेटिव, तो ये जगह आपका टाइम बचेगा अगर आपके माइंड में पर, इसको पेन मेमोरी कहते हैं, तो आपको आपका दिमाग में आपका बुलेट पॉइंट्स बैठ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। So now I'm clear with what to read and what to write. Now coming to the exam part. एग्जाम में एक चीज और बहुत जरूरी है जो आपको, मतलब मैं चैलेंजेस के हिसाब से बताऊं तो सबसे ज्यादा चैलेंज है मेंस का एग्जाम इटसेल्फ। तो वो जो 7 दिन है ना, दैट 7 days इट्स लाइक दैट इज द प्रोसेस, दैट प्रोसेस रिफाइंस यू। तो पहले देखना प्रीलिम्स बहुत लोग देते हैं, प्रीलिम्स के देयर आर सिचुएशन ऑल्सो जिसमें हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग 3-4 एग्जाम देने के बाद एग्जाम देने नहीं आए, क्योंकि उनकी या तो तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो इट्स नॉट इजी दैट कंटिन्यूइंग दैट प्रोसेस फॉर 7 days, इट्स नॉट इजी। शुरू शुरू में आपको इजी पड़ता है क्योंकि पहला एग्जाम इंग्लिश का या फिर बंगाली जीके करंट अफेयर्स, वंस योर लॉ पेपर स्टार्ट्स दैट टाइम यू हैव रियली नॉट मच टाइम। सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जैसे हमारे केस में सीआरपीसी और आईपीसी जो है वो 100 मार्क्स का था, एंड साथ में एविडेंस भी सेम ही दिन पे पड़ा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड सीआरपीसी एंड आईपीसी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट, एंड उसको 50 मार्क्स के लिए पढ़ना। तो मैंने हमेशा ये चीज दिमाग में रखी कि जो भी है दैट सब्जेक्ट कैन ओनली कंट्रीब्यूट 50 मार्क्स टू माय मार्क्स, उससे ज्यादा वो सब्जेक्ट नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता, चाहे वो सब्जेक्ट 500 पेजेस का ही क्यों ना हो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ऑन द अदर हैंड आपने जो ऑप्शनल में लिया है, जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप, वो बहुत छोटा सब्जेक्ट है बट दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट 100 मार्क्स। जैसे टीपी कंपेरेटिवली बहुत छोटा सब्जेक्ट है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इन कंपेरिजन टू सीआरपीसी और आईपीसी, बट वो आपका 100 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आप अपने मार्क्स को स्ट्रेटेजाइज करो। तो ये चीज एक हो गया। और एक जो बहुत बड़ी चैलेंज आती है वो है जो बीच के 2 घंटे आते हैं, दोनों एग्जाम्स के बीच के 2 घंटे। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हमारे में ये हुआ था सीपीसी आईपीसी और सीआरपीसी का जो एग्जाम था, उसमें बच्चों का क्या हुआ था, इट वाज वेरी लेंदी। तो आई अंडरस्टैंड इट वाज लेंदी, यस इट इज राइट, इट वाज लेंदी, बट आपका अगर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस आया है और उसमें 5 नंबर है, आप भले ही 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके आए हो, यू कांट कीप ऑन राइटिंग फॉर 20 मार्क्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द एग्जामिनर इज ऑल्सो गोइंग कैन नॉट गिव यू मोर देन 5 मार्क्स। मैं यही शुरू में बोल चुकी हूँ, इट्स ऑल अबाउट मार्क्स। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। मैं उसी 5 पॉइंट या फिर उसी 6-7 पॉइंट लिखूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तो फिर यू विल नॉट मेक योर पेपर लेंदी। तो लेंदी भी पेपर आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तो आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो आपको उसी 3 घंटे में ही करनी पड़ेगी। जो आपका होगा वो आपको कोई पहले से नहीं बता सकता, क्योंकि द क्वेश्चन पेपर इज गोना बी इन फ्रंट ऑफ यू, आप चाहे कितना भी प्रिपेयर कर लो, वो आपका वो 3 घंटा करेगा। उसके बाद मान लो अगर आपका पेपर एक चीज जो हुई है खराब, उतना अच्छा नहीं गया कोई भी पेपर, आप उसको यू कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पेपर इन दैट 2 hours। once you are done with the paper, keep the paper there and you are done with that। आपको उस बारे में सोचना ही नहीं है, उस पेपर के बारे में, ना कि बाहर आके बाकियों से डिस्कस करना है what you have written in this question that, because I have seen people when in that 2 hours का break, people rather than studying evidence, I'm not saying it's very bad practice, but I'm just saying it was not, I did not find it viable for myself। हाँ आप करो डिस्कशन, आपको करना है तो आप करो, बट आई थिंक वो 2 घंटा आप उससे ज्यादा अगर आप एविडेंस पे टाइम दोगे या फिर जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसमें टाइम दोगे या फिर उसका रिविजन करोगे, आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 मार्क्स लूज भी कर चुके हो तो आपका 10 मार्क्स वहां आप ज्यादा गेन करोगे, तो दैट माइट वर्क फॉर यू इन द टोटल मार्किंग सिस्टम। सो ये चीज आपको हमेशा सोचनी है। So that is a very big list of challenges, but it is all about that। But main challenge is the exam itself, not the preparation, nothing। It's exam, वो 7 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ के एग्जाम देना और उस 3 घंटे में अपने दिमाग को शांत करके सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना,
इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड आई विल आस्क ऑल द एस्पिरेंट्स कि प्लीज उसी चीज पे ज्यादा ध्यान दें। हम पर आपने बहुत सी चीजें क्लियर भी कर दी, जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट्स का ये नोशन है कि लेंदी पे मतलब आंसर को जितना लिख सको लिखते जाओ, केस लॉस भी डाल दो, ये भी डाल दो, बट बहुत से एस्पिरेंट्स ये भूल जाते हैं कि मार्क्स के ऊपर भी ध्यान देखना बहुत जरूरी है। मार्क्स देखो कि मार्क्स कितने के हैं। आप अगर 5 मार्क्स का पूछा है तो आप 10 पेज 5 पेज लिख के कोई फायदा नहीं होगा। एंड एट दैट एग्जामिनर इज अ जज, बहुत सी जगह पे हाई कोर्ट ले रहा है, तो वो उस चीज को प्रोसेस उतना ही करेंगे जितना मतलब जो क्वेश्चन है वो उतना ही करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है कि वो उतना ही प्रोसेस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब वो पूरा नहीं पढ़ते जाएंगे कि तुमने 10 पेजेस लिखे हैं तो हम चलो हम सब बैठ के पढ़ेंगे। तो दैट इज समथिंग जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हाउ मच मतलब इम्पोर्टेंस के मार्क्स को देखो आप कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आंसर्स लिखो। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं तो तो आपको लगेगा पेपर लेंदी है, अगर आप मार्क्स की तरफ देखोगे पेपर तो 100 मार्क्स का आया है ना, पेपर तो 150 मार्क्स का नहीं आया। और आपको 3 घंटे में नहीं बोल रहे कि 150 मार्क्स लिखो, दे आर सेइंग 100 मार्क्स विद इन 3 आवर्स, यू हैव टू कीप इट वेरी सिस्टमेटिक। और ये चीज जो है ना आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे देयर आर सम जूनियर्स आल्सो वी कीप ऑन आस्किंग मी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो 3 घंटा है ना, उस 3 घंटे के 1 मिनट को वेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कि एंड टाइम तक पढ़ रहे हैं, ठीक है 5 मिनट बाद चले जाएंगे, बेल बज गया है। आप, इट्स नॉट दैट, वो आप चाहे कितना प्रिपेयर कर लो, वट एवर यू परफॉर्म इन दैट 3 आवर्स, दैट इज गोना गिव यू द रिजल्ट, और कुछ नहीं दे सकता आपको। तो आप उसमें आके फॉर्मेलिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस ना, मैं मुझे ये चीज नहीं लगता, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बट मैंने कुछ कुछ अपने साइड से भी देख के सीखा है। जैसे क्या होता है कि लोग ना एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, तो उसके बाद नेम और रोल नंबर लिखे बिना ही लिख रहे हैं। तो आप अगर वो नेम रोल नंबर नहीं लिखोगे, आप चाहे वो 10 शीट लेके 10 लिख लो, आपका नहीं चेक होने वाला। तो आपको फॉर्मेलिटीज देखना है, ऐसा नहीं कि आप 3 लाइन लिखने के लिए आप अपने नोटबुक को टाई नहीं करते, मतलब जो भी एक्स्ट्रा शीट है उसको टाई नहीं करते, एंड द एग्जामिनर मतलब जो भी होते हैं, जो भी हॉल में होते हैं, वो अपना नोट आपका लेके चला जाता है, दे यू रन बिहाइंड देम कि हमें इसको टाई करने दो। मतलब these are very small things, I know, I might find it very silly and very small, but these are very important। अगर आपका टाई ही नहीं हुआ ठीक से, तो आप किस पे क्वेश्चन, फिर आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, क्या मैंने ठीक से बांधा था, फिर आपका वो चीज दिमाग में, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको भी पता है अगर आपने वो एक्स्ट्रा शीट ठीक से नहीं बांधा, तो देयर इज नो पॉइंट, चाहे आपने उस पूरा पेज भर के क्यों ना लिख दिया हो। तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज जो जरूरी होता है ना, हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, और उसके बाद हमने देखा कि वाओ, आई विल लाइक द क्वेश्चंस एंड आई विल कीप ऑन राइटिंग, ठीक है, तो उसके क्या होता है कि आप पहला क्वेश्चन में ही आप देखना आपका आधा घंटा से लेके 35-40 मिनट्स चला गया, बिकॉज यू लाइक द क्वेश्चन एंड यू आर राइटिंग, सोच रहे हो कि ये भी डाल देती हूँ वो भी डाल देती हूँ, बट आपको ये भी देखना है कि वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, नॉट ओनली स्ट्रेटेजाइज करो अपनी प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजाइज दैट 3 आवर्स एज वेल। जैसे मेरे पास, तो अगर मुझे कोई सजेशन में पूछता है, ऑलवेज से कीप ओनली हाफ एन आवर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप सिर्फ हाफ एन आवर रखो, या फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगना चाहिए। मैं 35 मिनट्स या 40 मिनट्स इतना रखती हूँ, उस हिसाब से पूरा एग्जाम को डिवाइड करो। देखना आपके पास एंड में आपका कॉपी रीचेक का भी टाइम होगा, आपके पास अपनी टाई करने का भी टाइम होगा, सब होगा, आपके पास सब टाइम होगा, बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट, कि अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं उसको 10 मिनट ही दूंगी या तो 15 मिनट दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर आया और आप 20 मार्क्स का लिखने लगे, तो ऑफकोर्स आपको आधा घंटा लगेगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। तो आपको वो बहुत, स्ट्रेटेजी इज मेनली फॉर द 3 आवर्स, नॉट फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि जो आप उस 3 घंटे में करते हो ना, उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। सो इट्स वेरी, आप बहुत पढ़ सकते हो बट आप बहुत लिख नहीं सकते, इट्स नॉट दैट इजी। तो दैट इज द थिंग आपको ध्यान में रखना। जी मैम, आपने बहुत सारे अच्छे टेक अवेज बोले। भले ही वो अपन को अभी छोटे लगते हैं, बट जब वहां पे मेंस के पेपर में आप लिख रहे हो और आपका एक एक टाइम जा रहा है, एक एक मिनट जा रहा है, और आप टाई नहीं कर पाए या आप रोल नंबर नहीं लिख पाए, आपको बाद में रियलाइज हो कि ओ मैं रोल नंबर तो लिखा ही नहीं। ये सब अभी अपन को लगता है सुनने में, बट जब अपन पेपर देख कर आ जाते हैं और फिर जब पता चलता है कि ओ मैं रोल नंबर नहीं लिख पाया या मैं नहीं लिख पाई, तब वो अंदर से ओह ये क्या हो गया वो। तो अभी से प्रिपेयर करना मतलब दैट इज समथिंग गुड, कि अभी से आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेलिटीज हैं, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने 3 घंटे को मैनेज भी कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच मैम। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी कि वो हाँ 3 घंटा इज इम्पोर्टेंट। आप चाहे 3 महीने से प्रिपेयर, 3 साल से प्रिपेयर करो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने वो 3 घंटे में
ठीक से नहीं लिखा, अगर आप 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू गिव अ ब्लैंक पेपर देन व्हाट यू गोना गेट, नथिंग, सो एज नथिंग। सिंपल एज दैट। नहीं, थैंक यू सो मच मैम, दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यूजुअली एस्पिरेंट्स को पता नहीं होते हैं, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आपका 7 दिन का पेपर है और आपको पता है कि भैया इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है, यू नो कि इतना सब कुछ करना है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं। जैसे मैं एक चीज और यस बताती मैम। हूँ आपको कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर था, पता नहीं बहुत सारे जुडिशरी में वो कंपलसरी, मोस्ट ऑफ द जुडिशरी में कंपलसरी पेपर होता है। तो जैसे आप क्या होता है ना, आपको एक ग्रुप ए से आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, ग्रुप बी से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, ऐसा करके है कुछ 20-25 मार्क्स ऐसे करके। तो आप ये नहीं कर सकते, या फिर आपको दोनों से दो दो लिखना है, तो जो कंपलसरी है, और एक किसी में से एक लिखना है, ग्रुप ए या तो ग्रुप बी से। ये जो सारे लाइंस है ना, मतलब ये जो सारे गाइडलाइंस है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि हम गलती कर देते हैं इसको पढ़ने में। बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु हैव रिटन 3 फ्रॉम आप बिना पढ़े आप लिख लेते हो। और सबसे बड़ी जो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज की बात है, एक चीज है, आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। आपको ग्रुप ए के कॉपीज को ग्रुप ए के साथ टाई करना है, ग्रुप बी के साथ ग्रुप बी के साथ टाई करना है। अगर आप ग्रुप बी को बाई चांस ग्रुप ए के साथ टाई कर देते हो, इट विल नॉट गेट चेक। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो दोनों शायद डिफरेंट जगह चेक होते होंगे। जो भी यहाँ फॉर्मेलिटीज है वो लिटरली इंस्ट्रक्शंस पे क्लियरली लिखे होते हैं। हम ये सारी चीजें, मतलब आप चाहे कुछ भी लिख लो, आप इफ यू डोंट गो विद दिस फॉर्मेलिटीज, आपका बहुत ज्यादा, मतलब नुकसान ज्यादा है फायदे से। सो दैट इज द मतलब वेरी फिर इंपॉर्टेंट। साल की मेहनत फिर एट द एंड बर्बाद ही हो जाइएगा, अपन फॉर्मेलिटीज पे ध्यान नहीं रखेंगे। Okay, thank you so much, ma'am, for this. Then coming to the next question, since you're women and since we are seeing कि अभी women representation judiciary में धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी है नहीं, बट हाउ मच यू थिंक कि यंग जो जनरेशन है उनको फोर्स करना कि वुमेन्स को स्पेशली, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं नोशन है ये बहुत सारे कि ये तो लिटिगेशन नहीं करना चाहिए लड़कियों को, इधर से उधर भागना है, कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं करना चाहिए, जुडिशरी में भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर अपन बाकी सेक्टर्स से देखें, अभी दैट इज अ फैक्ट विच वी कांट डिनाई, दैट इज द फैक्ट, मतलब जो पता है सबको कि जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है। तो हाउ मच इम्पोर्टेंट यू थिंक एंड हाउ व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग जनरेशन, स्पेशली वुमेन्स की उनको इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना चाहिए? ओके, तो ये चीज जो है ना, मैं एक पहले तो बताऊंगी कि ऑफ कोर्स वुमन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। जैसे आपने बोला कि लिटिगेशन नहीं करना, और क्रिमिनल लॉ तो बिल्कुल ही नहीं करना, पहले ही घर से ना हो जाता है कि क्रिमिनल लॉ तो करना ही नहीं है लड़कियों को। तो ये सब चीजें आई कैन अंडरस्टैंड, बट सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, it's like, of course, judiciary in it's like a society where we want, equality in case of power, representation, presentation, and also, everything like of decision making, of being yourself in the completely, if I think say can say. So that is what you require in the society, and it's such a social institution. Like judiciary is a social institution, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, वैसे इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स अ सोसाइटी, social institution shall reflect a society. So not only men and women, I feel it's not a question of men and women, it's like from each and every sector of the society। आपको अगर each and every sector of the society से है, so it's gonna be a like a perfect, like that will be a correct representation of the society itself on the bench। बाकी अगर मेन वुमेन की बात है, अब तो कुछ कुछ जगह पे जैसे वुमेन के लिए हमारे कंपलसरी हो गया है कि फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस देयर शैल बी अ वुमेन जज ऑन द बेंच। So of Yes. course it's very important, and because it's good, it's a good power to the, I will say the thing for which women fought for years, that is the power of decision making. And here if you're gonna sit, you are gonna make the decision. So now it does not matter who is in front of you, whether it's that's a male, female, or whosoever it is, you are gonna make the decision for the society itself, from, or maybe from the society from which you yourself belong. So that's why I think that yes, the young generation, of course, if you think that you are meant for this and you can do this, of course you should. Yeah, I think Jurishri per se gives you the power, which you said that he from years we are fighting for power, for the decision to make. We are fighting for that only. And Judiciary gives you exactly that कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, आप उस कोर्ट के आप ही हो जो
उस पर्टिकुलर कोर्ट में आपकी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। सो आई थिंक दैट इज अ रीजन कि वुमेन्स को आना चाहिए और जुडिशरी में, स्पेशली वुमेन, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कम है एंड वी नीड वुमेन जजेस मोर। अगर आप देखो अपनी ही फैमिली में, आप शायद अपनी नानी दादी मैक्सिमम, मतलब आपके मॉम फिर भी ठीक है, बट नानी दादी के टाइम में हमने देखा होगा कि दे आर स्टिल नॉट द डिसीजन मेकर। अगर उनसे आप कुछ पूछते हो, दे विल से हमसे क्या पूछ रहे हो, so that is the thing we have. And then whatever you are sitting in a court, you are not only affecting that particular court, whatever your judgment will be, the society itself bound to follow that. So it's the biggest power of decision making. आप ऑफ कोर्स आपका डिसीजन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, लाइक ऑफ कोर्स फॉर द सोसाइटी और सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए, बट द द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग विल बी गिवन टू यू एज अ वुमेन, जो वुमेन को बहुत सालों से, मतलब हमारे घर में ही अवेलेबल है, कि शायद नहीं मिले हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस चीज को देखो। तो बट एंड फॉर मी आई फील इट्स नॉट ओनली मेन एंड वुमेन, इट्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। it shall reflect the society in itself, not only चाहे वो अंडर डेवलप्ड क्लासेस हो या फिर इवन क्यूअर कम्युनिटी हो, मतलब जितने भी एलिजिबिलिटी कम्युनिटी के भी हो, तो उनके भी होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट विल रिप्रेजेंट द सोसाइटी, दे आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड यू शुड हैव इट इन द बेंच, Yeah, तो इस हिसाब से मुझे लगता है एवरीवन शुड गेट इन। yeah, I also think the same that judiciary should be inclusive of all the society. Like at the end हम society के लिए decisions ले रहे हैं, तो हमें उस मतलब हमारे पास सब होने चाहिए कि हाँ उस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप डिसीजन लेने वाले हो, उस कम्युनिटी में आप रहे ही नहीं हो कभी, तो आप कैसे बता सकते हो कि what are their struggles, what are they facing? Like recently the Kerala High Court judge, he went on to study the psychology of LGBTQ, how मतलब व्हाट आर द हाउ दे थिंक, वो ऐसे क्यों होते हैं, मतलब जो एक सोसाइटी ही स्टडीड अबाउट इट एंड उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन दिया। तो ये सेड कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज की तो आप नॉलेज लो उस चीज की, बट आप किसी एक कम्युनिटी के बारे में सिर्फ इस बेसिस पे आप जजमेंट नहीं दे सकते ना कि आपको पता नहीं है बट यू थिंक यू आर रॉन्ग, आपको लग रहा है कि ये गलत है, बट आपने कभी फेस ही नहीं किया एज अ कम्युनिटी कि वो क्या फेस कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ दैट इज समथिंग कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मैन एंड वुमेन, सोसाइटी इन जनरल इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर कम्युनिटी के लोग होने चाहिए उसमें जैसे जुडिशरी। देखो, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हूँ, बिकॉज आई नॉट ओनली बिकॉज आई एम गोना बी सर्विंग इन दिस पोजीशन, बट बिफोर दिस आल्सो आई वाज वेरी श्योर दैट not only I sit for the exam and get clear the exam and get done with the exam and then I get the job and I sit for it. It should not be like that for me. I prepared myself to be into that position and to understand हाउ कम इट कैन बी। सो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक बताती हूँ। जैसे एविडेंस एक्ट में अगर आप देखो तो आपका एक वो होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, तो आप आपके अगर साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल कोई चीजें होते हैं तो आप साइंटिस्ट या फिर जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे पूछते हो ना। तो आप अगर किसी भी सोसाइटी का डिसीजन लेना चाहते हो, उस सोसाइटी में अगर कोई रह के आया है, दे और वॉट एवर ही और शी और दे, उन लोगों को सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट आर द एक्चुअल चैलेंजेस बिलोंग्स टू देम। तो और मुझे ये चीज लगता है कि आपको सारी सोसाइटी को आपको रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो ही इट विल बी लाइक अ इक्वल बेंच फॉर द सोसाइटी। Yes, ma'am. Now coming to our last question, what will be your motivation to the aspirants for giving the exam, especially during pandemic जब notifications का पक्का नहीं है कि कब आएगा, सिंस आपने खुद ने नोट पैंडेमिक में पेपर दिया है तो यू नो कि एक अंदर से रहता है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन, और अभी बहुत से स्टेट से नोटिफिकेशन निकाल दिया है पर कोई सर्टेन डेट नहीं कि एग्जाम कब होगा। वी नेवर नो कि कब इस साल होगा भी कि नहीं होगा, अगले साल होगा, वो नहीं पता है। तो एक मोटिवेशन की टू जस्ट कीप गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रीम जहां आप पहुंच चुके हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि नो यू कैन डू दिस, जस्ट कीप गोइंग ऑन दिस पाथ। हाँ, एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग वी वर द फर्स्ट बैच टू सिट फॉर दिस इन द पैंडेमिक, so it was altogether a different experience. Trust me, writing a 3 hours paper wearing a mask is not easy. So in that case I would say that is also another challenge of the judiciary exam nowadays. तो इस हिसाब से जो हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ बहुत बार डेट्स शिफ्ट हुए, हमारे प्रीलिम्स के डेट्स कभी आते हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन निकल जाता है कि आपका 20 दिन बाद होगा, फिर चेंज होता है। So we filled up the form in July and we gave our prelims in October.
सो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो हाँ, हमारे केस में अभी तो इस बार हो चुके हैं वेस्ट बंगाल जुडिशरी के प्रीलिम्स, हमारे टाइम अभी नहीं हुए थे। सो बहुत ज्यादा आपको इस चीज में सोचना है कि इट्स नॉट 10th और 12th का एग्जाम कि बिना दिए भी आपके पास एक रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक ना एक दिन ये एग्जाम जरूर होगा। एंड अब आपको अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है, ट्रस्ट मी, उस चीज को यूज करो। इफ यू आर सिटिंग एट होम, you're not, you don't need to go to any places, then that is a good thing। जैसे मेरे केस में था, जैसे हम लोग, मैं अपना बताती हूँ, जैसे जब मेंस चल रहा था तो तब हमारा दुर्गा पूजा और काली पूजा का टाइम चल रहा था। वेस्ट बंगाल में इट्स लाइक अ बिगेस्ट सेलिब्रेशन, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इट कट डाउन अ बिट। तो आपको ऐसा नहीं कि चारी साइड से बहुत हल्ले और आवाजें आ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो आपको ये सब चीजें भी देखना है कि दैट इज द थिंग, इट हेल्प इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। जैसे हमारा टाइम भी कम हो गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेंस को उन्होंने एकदम एग्जैक्ट, हम एग्जाम अपना दुर्गा पूजा काली पूजा के बीच में पढ़ के मेंस का एग्जाम दे रहे थे। तो इट वाज वेरी टफ, ऑफ कोर्स इट वाज। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं पता, और आ भी गया है तो भी पता नहीं कि उस पे इट विल स्टैंड और नॉट, कि वो भी बाद में 10 दिन पीछे हो जाता है, आगे हो जाता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं समझ सकती हूँ स्ट्रगल को, क्योंकि हम लोगों की बैच ने सबसे ज्यादा फेस किया है इस चीज को। तो हमारे साथ बहुत कुछ था। तो अभी भी है, अभी भी हम वी आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ओनली। बट इसलिए मुझे लगता है कि आपको ना एक चीज में मोटिवेशन आपका रखना है कि जो भी है, आई विल बी डिटरमाइंड टुवर्ड्स माई गोल, क्योंकि एक ना एक दिन द अपॉर्चुनिटी विल कम टू मी। तो ये आपको बहुत, अगर आज मुझे 10 दिन ज्यादा करने पड़ रहे हैं तो इट्स ओके ना, कि मेरा ही अच्छा है, टाइम ज्यादा मिल रहा है टू रिवाइज। आई कैन टेक अ ब्रेक एटलीस्ट फॉर 2 days। अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन ज्यादा मिल रहा है, आई एम डन विथ माई स्टडीज और कुछ है, तो टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, आपको बेटर लगेगा। एंड ऑलवेज ऑलवेज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई वुड से, टेक योर गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, चाहे वो एवरी डे के थोड़ा सा ही ब्रेक हो। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट टाइम योर माइंड नीड्स टू बी देयर फॉर यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving us time and giving a valuable inputs जो एक एस्पिरेंट को ज़रूरी है, स्पेशली पेपर में जो जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड ओवरऑल आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया, स्ट्रगल्स बताए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, मैम। मोस्ट वेलकम, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प द एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारे टाइम में भी बहुत हमें कुछ कुछ चीजें जो सुनने को नहीं मिली किसी से, आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट। सो वेरी हैप्पी, आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। That थैंक यू is सो very मच फॉर kind of गिविंग you, द ma'am. That is अपॉर्चुनिटी। very kind of you to think something like that. Not many people think like that कि हमने मिस आउट कर दिया तो नहीं, दूसरों को ये मिलना चाहिए. Not many people think ये. But that is very kind of you to think something like that. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक